We're going to take this across to a range of voices today for more on just what makes gun culture thrive in Punjab. Was Sidhu Moosewala part of the system that glorified it all and ironically brought about his own death with guns so easily accessible? Sonia Maan, actress, joins us on the show. She was with Moosewala in one of his songs. Jasminder Narula, also a singer, is with us. Nazi Firozpurwala, a lyricist, is with us, as is another Punjabi singer, Dinero Ash. Sonia Maan, let me begin by asking you, you've worked closely with Sidhu Moosewala as well. Do you believe that this celebration of guns that we saw in his songs in a way also fed into the culture of easy guns and gangsterism in Punjab that eventually led to his death? His songs, बेसिकली जो भी उनके गाने होते थे गन्स के रिलेटेड जो भी होते थे वो एक पंजाब की, जैसे वो स्टूडेंट की हम बात सुन रहे थे, वो एक पंजाब के कल्चर में है वैसे तो इनबॉर्न कि शादी के ऊपर फायर करना, दिवाली के ऊपर फायर करना, तो वो एक ब्लड में है, एक दलेरी है और एक प्रोटेक्शन के लिए गन रखना. बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. उसको आप गैंगस्टरिज्म के साथ में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि गैंगस्टर जो भी हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जिनके पास काम नहीं होता, जहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब वो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो जहाँ पे पॉलिटिशियंस उनका इस्तेमाल करते हैं, वहां से गैंगस्टरिज्म स्टार्ट होता है ग्रुपिज्म की वजह से. तो ज्यादातर तो मेरे को जितनी नॉलेज है, जो पंजाब में इस टाइम पे 2 ग्रुप्स चल रहे हैं, वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, जहाँ यूनिवर्सिटी की प्रधानगियों से शुरू हुए, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और किसी भी तरीके की धक्काशाही उनके साथ हुई होती है, तो फिर वो बाद में गैंगस्टर्स बन जाते हैं और फिरौतियां मांगते हैं और ये देखते हैं कि किनके पास पैसे हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और पॉलिटिशियंस के साथ अंडरग्राउंडली काम करते हैं, जेलों में अंदर रह के भी. Right, very aptly pointed by Ms. Maan there that unemployment is another reason which has actually triggered crimes like these. So we have a very diverse panel here. We also have Jasminder Narula, who's seen different generations of singers and artists. Ma'am, I would like to talk to you, if we can have Jasminder Narula as well. So you've seen different generations, different artists. Do you think today's generation is confusing bravery with gangsterism? I'm losing your voice, actually. I could not hear the question. So you've seen multiple generations, different, artists Yes. of across generations. Yes. Yes. Do you think today's generation or artists are actually confusing bravery with gangsterism? As Maan was also pointing, bravery and valor, all of this is in Punjab's blood. But is that being confused? No, that is a different thing. Of course, Sikhs are known for their bravery, and we are proud of it, I'm going back when I used to perform as a child with my parents. I used to go. My father also had a gun, licensed gun for defense, just because we used to come odd timings, we were traveling to UP, we were traveling different places, So that was only for protection, self-protection. We had that small pistol. My dad had it. So all these years. That was a different thing. And, having this culture, ke shaadi mein, fire karna, ye sab, ye ek alag cheez hai. But ye jo hua hai, let's not mix it with that, This is something different. This is actually very devastating, very, very sad कि एक बच्चा 29-year-old बच्चा जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी और इतना he was seeing such a इतना कुछ वो देख रहा था, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है जिसको देख के मैं हैरान हो गई हूँ. I'm really and I'm very like कितना वो अपने सेल्फ उससे वो बढ़ रहा था आगे, and this all happened, and I still can't understand कि ये गैंग वाला जो अभी निकल के आ रहा है सामने, why did this happen? I still fail to understand why this happened. This is
because of this gun culture or whatever we are talking about. Yes, it is really, ये आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और गानों में भी यूज हो रहा है ये सब. ठीक है, हमें मालूम है कि फिल्मों में भी यूज होता है, जो एक्शन फिल्म्स हैं उसमें भी यूज होता है, और उसकी भी हमारे जैसे लोग तो अगेंस्ट ही हैं, क्योंकि हम लोग तो वैसी फिल्में देखते भी नहीं हैं. वी डोंट लाइक टू वॉच. मैं पहली बात तो यही बताऊं कि मैं तो वो देखना भी नहीं चाहती वैसे फिल्में. उसी तरह मैं उस तरह के गाने भी नहीं सुनती हूँ जिसमें, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ. ये यंगस्टर्स के लिए डेफिनेटली. बट फिर बुजुर्ग यही कहते थे कि व्हेन यू जैसा आप सोचते हैं वैसा प्रभाव आपके ऊपर, मतलब जो देखते हैं आप और जो आप जैसी उसमें संगत में रहते हैं वो प्रभाव आप पे पड़ने लगता है. ठीक है, तो ये चीजें हमने सुनी है, तो उसकी वजह से मेरा मानना ये है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए. संगीत में इन चीजों का कोई मतलब नहीं है. ये चीजें Okay. Ms. Narula, for me it's not acceptable. Since we have a lyricist and another singer on the show, Navi Firozpur wala, aap bataiye, do you believe that guns and violence and gangs, these are not the subject of music and should never be the subject of music, as Jasbinder ji says? मैं मतलब पहली बात तो ये कि ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और मैं भी इन चीजों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ. बट पंगा क्या है कि देखिए, आज से मेरे ख्याल जो हर बात को घुमा फिरा के वहीं एक एजेंडा पंजाबियों पे थोप दिया जाता है कि हम गन को वो कर रहे हैं, अपना प्रमोट कर रहे हैं. बट अदरवाइज अगर हम देखें तो साउथ इंडियन मूवीज हैं, जब बॉलीवुड है वो इतना एक्शन को प्रमोट करे, इट मीन्स तो फिर सारा वहीं से ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे वो चीजें रिलीज हो रही हैं, फिर तो वो ज्यादा बड़ी चीज है, उसका इफेक्ट होएगा मेरे ख्याल से पूरे इंडिया पे होना चाहिए. सो ठीक है कि ये चीज थोड़ी कम होनी चाहिए, बंद ही हो जानी चाहिए. चलो मैं कहता हूँ कि गन वाले गाने, जैसे अभी नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने बोला भी है कि हम. पर फिरोजपुर वाला जी, आपको लगता है कि बीइंग अ बॉर्डर स्टेट इन अ सेंसिटिव एरिया वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ गन ट्रैफिकिंग एंड गन्स आर अवेलेबल इजीली, ये पंजाब के लिए एक प्रॉब्लम है in the way that it is not a problem for Bollywood or places in the south, that it's more. No, it's I would say I would correct here. wait सुनिए, wait, जो आपने कही अभी कि प्रभाव तो पड़ता ही है, भले वो महाराष्ट्र हो, भले कहीं भी हो, हादसे बहुत जगह होते हैं, हो रहे हैं. तो इनका मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि फिल्मों में भी जो इस्तेमाल करते हैं उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है और हादसे हो जाते हैं. बहुत बार आया है अखबारों में कि ऐसा हुआ, बच्चे ने वो देखा, उसने गन चला दी, ऐसे हो गया, उससे डेथ हो गई. इसका प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है. नहीं, वही हम भी बात करें कि आर्ट और कल्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. और जैसे हम पहले भी पंजाब में गन्स, चलो है, पंजाब में गन्स नहीं मिलती इलीगल, सारी गन यूपी से आती हैं, चाहे वो देसी कट्टे हों चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं. और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस चीज का कारोबार करते हैं, जो कि हम आजकल सीरीज में भी देख रहे हैं, मूवीज में भी देख रहे हैं. एटलीस्ट पंजाब में इस तरीके से इलीगल धंधा नहीं होता. तो ये जो गन कल्चर, ये कट्टों का और इस तरीके का जो गैंगस्टरिज्म है, ये यूपी से शुरू होता है. और जो ये शूटर्स भी आए थे, ये वहीं से ही आए थे और ये बाहर से आके ही मारते हैं. बट इसके जो गैंग्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो जेलों के अंदर बैठ के इसको ऑपरेट करते हैं. Sonia Maan makes a very important point over here, and we'd like to add at this point that the first arrest has also happened in the case. A man who was detained yesterday in Uttarakhand, and in fact the Uttarakhand police and the Punjab police are now cooperating in all this also. But Dinero, Ash, do you want to come in on this, and how are your songs placed in this spectrum? Do you also talk about guns in your songs, and what did you think of the songs of Sidhu Moosewala? See, hi to everyone, and it's very devastating that all this happened, and entire music industry, especially Punjab music industry, is very shocking that how Sidhu was executed, and he was 29 years old,
He had a full, healthy, beautiful career ahead in front of him, and he was coming up with like really good numbers. As far as a lot of people are talking about lyrics and guns and violence, I know like the entire Hollywood is also talking about guns, this and that, but that don't mean anything. It's just a topic of it's your choice, it's your We're course having of trouble with your audio. We'll try and fix that and come back to you. But Sonia Man, you had a point to make. Go ahead. Yeah, ma'am, I just really want to tell you one thing कि हमें गन कल्चर के साथ ये बात को उलझाना नहीं चाहिए. मेन बात हो रही है सिद्धू मूसेवाले का कत्ल क्यों किया गया, किसने किया. गैंगस्टर्स के 2 ग्रुप हैं और वो विक्की मिड्डू खेड़े के साथ कैसे कनेक्टेड है. जैसे कि इन्होंने बोला कि सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर जो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था, बट इनको पहले उस बंदे के साथ पूछताछ करनी चाहिए थी. और जो ये 2 ग्रुप हैं, लॉरेंस के लोग ये सोचते हैं कि सिद्धू मूसेवाले का हाथ था विक्की मिड्डू खेड़े को मरवाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया और धमकियां दी. अब जो सिद्धू मूसेवाले के तरफ से इधर के जो गैंगस्टर्स हैं, बम्बीहा ग्रुप, वो अब मनकीरत औलख को धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो विक्की मिड्डू खेड़े का फ्रेंड है. सो दिस व्हाट्स हैपनिंग इन पंजाब राइट नाउ, विच इज रियली सीरियस मैटर. हमें इस पे बात करनी चाहिए कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये जो जेल में बैठे ऐसे गैंग चला रहे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, अगर इंटेलिजेंस है इंडिया में, अगर कुछ है, सीआईडी है, अगर ये इनके साथ कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो अगर ये जेल में बैठे हैं, पुलिस की हिरासत में है, तो इनसे पूछताछ क्यों नहीं की जाती. शरेआम इनके जो ग्रुप्स हैं वो कैसे जिम्मेवारी उठा सकते हैं और फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल सकते हैं. ये इंडिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि हमने इसको मारा है और नेक्स्ट हम इसको मारेंगे. और ये कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम से पंजाब में ये चल रहा है, और इसकी ये अभी फिलहाल पॉलिटिक्स के आम आदमी पार्टी है तो ये आम आदमी पार्टी के सिर मड़ देंगे. पहले वो कांग्रेस थी तो उसके सिर मड़ देंगे, अकाली दल थी उसके सिर मड़ देंगे. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, मुद्दे की बात करनी चाहिए. और ये जो गैंगस्टर्स हैं इनको खत्म करना चाहिए, दोनों ग्रुप्स को, ताकि आने वाले टाइम पे और किसी बेटे की जान ना जाए. Exactly. A thorough investigation is what is needed at this time. With this, we've come to an end of this show, but news continues on the other side. Thank you all for joining us.